Good morning, students. Science class 8th, and today is our topic multiple reflection. Multiple reflection. So you have need two rectangular piece of plane mirrors, an object, adhesive tapes. Place the two mirrors face to face, join and the strip to adhesive tape fixed at the edge of mirror. तो इसमें देखिए इमेज 1 और इमेज 2, इमेज 3 and here object one mirror M1 एंड सेकंड मिरर M2। इनको जो है एडजस्ट करना है 90 डिग्री एंगल पर, इनके बीच 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। इमेज 1 एंड 2 ऑब्जेक्ट आर फॉर्म टू रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर M2 एंड M1 रिस्पेक्टिवली। हाउ इज द थर्ड इमेज फॉर्म्ड? तीसरी इमेज कैसे फॉर्म होती है? सिंस द टू मिरर हेल्ड टू द एंगल मिरर M1 becomes to object to mirror M2 and the image M1 is formed to M2 in M2. In same ways the image M2 is formed to M1. Thus first image 1 and image 2 are formed. The third image formed upon reflection of the two image mirror. तो जो तीसरी इमेज होती है वो रिफ्लेक्शन से फॉर्म होती है। Since the image both these image mirrors to form the same spot, they appear to single image or image 3. Now change the angle between the mirrors in 60 degree. How many images formed? When the angle is decreased, the image of mirror separate, the more images of an object can be observed. Thus multiple image of plane mirror placed at the angle are formed due to the multiple reflection. तो multiple reflection से उसमें ढेर सारी image form होगी. There is the definite relation between the image formed to angles between the two mirrors. It is follows. So number of image 360 degree. Here degree of angle between the mirrors -1. Dispersion of light. A ray light entering to glass prism split into the component color red, bibgyor, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet, 7 color. दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। इन स्प्लिटिंग टू वाइट लाइट टू कंपोनेंट कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वाई डज द वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू लाइट ऑफ 7 कलर्स? लाइट ट्रेवल टू स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है स्ट्रेट लाइन में चलती है। ए रे ऑफ वाइट लाइट दैट फॉल इनटू द ग्लास प्रिज्म डज नॉट कंटिन्यू टू मूव along the original path after entering the prism. The path of the ray bends. This is called refraction. तो जो पाथ होता है जहाँ से बेंड होता है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है. The path of light changes as it passes from one medium to another. In this case air and glass are two different media. एयर और ग्लास अलग अलग मीडिया है. After the passing through the prism, when the ray emerge out, it is deviate again. तो deviate होता है. Every time of light moves from one medium to another, it refract. The color of white light is separated because the glass bent each color component rays of white light differently. तो जो कलर रहेगा वाइट लाइट का वो अलग होता है क्योंकि ग्लास में जो कलर कंपोनेंट होते हैं वो बेंड होते हैं या रेज बेंड होती है और ऑफ द वाइट लाइट डिफरेंटली. ह्यूमन आइज. द ह्यूमन आइज कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल डिवाइस क्रिएटेड बाय नेचर. ह्यूमन आई कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि नेचर के द्वारा बनी है, प्राकृतिक है. इट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स, डिस्टिंग्विश कलर, साइज एंड परसीव डेप्थ एंड डायरेक्शन. इससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, किसी चीज़ का साइज और गहराई और दिशा भी जान सकते हैं. टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आइज लेट अस फास्ट लर्न अबाउट द इट्स स्ट्रक्चर. तो पहले है द स्क्लेरा. दिस टफ लेयर इज टिश्यू फॉर्म टू वाइट पार्ट इज कॉल्ड ऑफ द आई एंड द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया. A delicate membrane called is conjunctiva line of the
cornea. The cornea allows to light enter the eyes and bend light rays so that they can be brought to the focus. The surface of cornea is kept moist. जो कॉर्निया का सरफेस होता है वो नम रहता है और डस्ट फ्री रहता है और उसमें से फ्लूइड सिक्रीट होता है टीयर ग्लैंड से. द कोरॉइड कोट, दिस इज़ द मिडिल लेयर ऑफ आइज. ये मिडिल लेयर होता है, ये पिगमेंटेड होता है. एंड रिड्यूसेस रिफ्लेक्शन स्ट्रे लाइट विद इन द आइज. और आँख में ज़्यादा लाइट ना जाने पाए उसके लिए वो उस लाइट को रिड्यूस करता है. द कोरॉइड कोट फॉर्म्स द आइरिस इन द फ्रंट ऑफ द आई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आई कलर. आई कलर जैसे कोरॉइड कोट जो होता है वो आइरिस के इन फ्रंट में, आई के बीच में रिस्पॉन्सिबल होता है उस कलर के लिए. बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस द लिक्विड, कॉर्निया और आइरिस के बीच जो लिक्विड पाया जाता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं. एक्वा मीन्स वाटर. एंड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस के का जो सेंटर रहता है उसमें प्यूपिल पाया जाता है. प्यूपिल ब्लैक कलर का छोटा सा भाग है और लाइट उसी से इंटर होती है. और बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे ही लेंस रहता है. और द हॉलो ऑफ द आइज फिल्ड विथ ए लिक्विड, और जो हॉलो आइज है पीछे उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं. रेटिना, the inner layer of eyes is called retina. It is made up of two type of light sensitive cells. इसमें दो सेल होती हैं, rods and cones. The portion of retina where is image focus, जहाँ पर इमेज बनता है उसे फोबिया बोलते हैं या फोबिया सेंट्रलिस बोलते हैं. Here फोबिया सेंट्रलिस, फोबिया सेंट्रलिस के पास ही इमेज बनता है और इसी में येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट भी होते हैं. ब्लाइंड स्पॉट से नर्व सारी इसमें से ब्रेन को गई रहती हैं जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं. द पोर्शन ऑफ इनर सरफेस ऑफ आई वेयर द रेटिना इज नॉट कंटिन्यूस एंड देयर इज नो रॉड और नो कोन्स इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट में ना तो रॉड्स रहते हैं ना कोन्स रहते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, नर्व्स रहती हैं. नो इमेज फॉर्म टू ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल रॉड एंड कोन्स. द सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो शेप, लेंस के शेप को, फोकस जो होगा इमेज रेटिना पर उसको चेंज करती रहती हैं. कंजक्टाइवा हियर, कॉर्निया, आइरिस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस एंड सिलियरी मसल्स. हियर स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना, फोबिया सेंट्रलिस, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर. द स्ट्रक्चर ऑफ आइज. थैंक यू स्टूडेंट.